अभी सच बोलो तो I mean I won't disclose the salary. Even in the cloud, you are getting better than the software development engineers. That's true. Hello everyone, welcome to your YouTube channel. I hope you're doing well and staying safe. So today we are here with our new episode of Career Pe Charcha, where we have invited our guest whose name is Saurav, and he's working with Amazon as a cloud support engineer one into the AWS networking team. So without wasting any time, let's get started. So Saurav bhai, thank you so much for giving your valuable time. आपने अपना precious time निकाला है and I know how busy you are. So thank you so much for that. सो अभी हम अपने व्यूअर्स के लिए जस्ट गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ वाज योर एजुकेशन, वेयर डिड योर एजुकेशन एंड ऑल स्टफ. अभी बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अस. सो द स्टेज इज अप टू यू. Deepak, first of all, thank you for inviting me here to your channel. So myself Saurabh, and I am working with Amazon Web Services since around 3.5 years. इसके पहले I was with Vodafone, and earlier to that I was with Bharti Airtel. I started my career with Bharti Airtel, then moved to Vodafone, and then I am finally with AWS since 3.5 years. ओके ओके. सो पहले अभी आपकी ना एजुकेशन के बारे में बात करें तो आपने हाउ वाज एजुकेशन, आई मीन 10th और 12th आपने कहाँ से किया एंड देन व्हाट डिड यू परस्यू? So 10th and 12th I did from my hometown. BCA as well I did from my hometown itself. I belong to Banda, which is near to Kanpur, Okay. UP. So there itself I completed my all the schooling and Okay. graduation. And इसके अलावा I have completed my Cisco certifications and CEH certification, Certified Installer certification. This is my total qualification in terms of degree. So let me stop you. You said that you have done BCA. तो आप BTech graduate नहीं हो, right? I'm not a BTech graduate, but still I'm an Okay. engineer. Yeah, you're still an engineer, to be honest. Yes, yes, yes. That's nice. तो जब आपने BCA किया, so what made you think कि मतलब कि you can go into networking, क्योंकि आपने शायद वोडाफोन से स्टार्ट किया या एयरटेल से? Airtel से start किया. I was there as an Exactly. ORT engineer. So basically, I started my career from the customer support, and then I moved to the networking, and then I am here working with AWS as a cloud engineer. Here I work in the network services. ओके ओके. तो आपने BCA से पहले आपने फिर आपने नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन की, एयरटेल, वोडाफोन एंड देन अमेजोन. सो कितना कितना टेन्योर रहा आपको एयरटेल में, वोडाफोन में एंड देन अमेजोन? Airtel I worked around 7 months. Vodafone I Okay. worked around 10 months, and then in Amazon I am here since 3 years and 6 months. So you got the opportunity at Amazon as a cloud support associate or cloud support engineer one? Associate. Okay, and then you got And promoted. internally got promoted. Ah, that's nice. That's nice. So how is the experience? तो पहली बात अगर मैं बात करता हूँ तो आपने एयरटेल में आए, पहले आपने सर्विस प्रोवाइडर पे काम किया, आपने ISP पे, राइट, एंड देन वोडाफोन. तो और यहाँ पे तो कोर नेटवर्किंग पे आपने काम किया होगा, राइट, राउटर्स स्विचेस पे. एग्जैक्टली. एंड देन ट्रांजिशनिंग टू क्लाउड. तो मतलब पहले आपने जब ये किया, ओके, तो पहले हम ये बात करेंगे कि पहले आपने इसको ग्रैब कैसे किया अपॉर्चुनिटी एयरटेल को? So since I was in graduation, I had this thing very much clear in my mind कि मुझे ये कोडिंग वाली जॉब नहीं करनी, ना कोडिंग की, Okay. ना वेबसाइट डेवलपमेंट की, ना सॉफ्टवेयर बनाने की, बिकॉज मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं. इवन दो आई वॉज क्रेजी फॉर कंप्यूटर्स, बट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट आई वॉज नॉट वेरी गुड. सो व्हेन आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन, आपको सब कुछ पढ़ाते हैं उधर. डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, एरे पढ़ाएंगे, और वेब डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, जावा पढ़ाएंगे, डॉट नेट पढ़ाएंगे. But when you say about the computers and this whole IT industry, it is not limited to the software development or web development. जब आप पढ़ रहे होते हो इन दैट पर्टिकुलर क्लास, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको एक दिमाग में आपके या आपके इंटरनल अंतरात्मा से आवाज़ आती है, आपके कहते हैं ना कि यार दिस इज समथिंग आई कैन डू, जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, इसमें मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसे कहते हैं ना. तो True. दैट इज समथिंग वी कैन डू. तो जब मैं नेटवर्किंग पढ़ रहा था या लिनक्स पढ़ रहा था, तब मुझे अंदर से आया कि यार दिस इज समथिंग आई कैन डू वेरी गुड. और जब मैं कोडिंग वगैरह कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि अदर इंजीनियर्स, अदर कलीग्स ऑफ माइन, दे वर फिनिशिंग अप ऑल द कोर्स इन 10 to 15 minutes, एंड द सेम कोड वाज टेकिंग मी 30 minutes, 40 minutes. सो आई वाज लाइक कि मेरे में कुछ कमी है कि, और दिस थिंग इज नॉट फॉर मी. So that question I asked myself when I was pursuing my graduation, and the answer came that this is not for me.
And even though when I was in college, I gave all the interviews, ये web development का, software development का, I got the job, but मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना. So being as a fresher, when you are coming up from the college, आपके दिमाग में बस ये रहता है कि जॉब मिल जाए एंड इंटरनली हम स्विच करें. बट ये मेरे साथ नहीं था. मेरे साथ ऐसा था कि मुझे जॉब करनी है तो मुझे अपने डोमेन में करनी है, चाहे मुझे उसके लिए जितने धक्के खाने पड़े. सो वो मेरे साथ क्लियर था. एंड मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एयरटेल से. आई वोंट डिस्क्लोज द सैलरी, बट इट वाज वेरी लेस देयर. बट मुझे अपना काम बहुत पसंद था एयरटेल में भी, एंड फिर मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया. मुझे जो सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिला वोडाफोन में सीखने को मिला. एंड बिकॉज ऑफ द नॉलेज आई गेन्ड इन वोडाफोन एट द ISP लेवल, मैंने सारा नेटवर्किंग का जो कोर था, BGP, MPLS, OSPF, सब कुछ मैंने वहीं से सीखा इन डेप्थ. वो उसने मेरे को हेल्प किया अमेजन का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. ओके, क्योंकि आपके दो पॉइंट पे आऊँगा मैं. एट द एंड जब मैं अभी क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, बट एट द एंड क्लाउड किस पे टिका हुआ है? इंटरनल आर्किटेक्चर इज होल नेटवर्किंग, राउटर, स्विचेस, ट्रू. दे आर देयर. तो अगर आपका बेसिक नेटवर्किंग क्लियर है, देन यू कैन क्लियर द क्लाउड इंटरव्यू. तो मेरे साथ वही हुआ था. जब मैं यहाँ आया था तो उन्होंने मेरे से, अमेजन में जब आया तो मेरा अराउंड 1 घंटे का मेरा नेटवर्किंग का राउंड हुआ था. वो मेरा बहुत अच्छा गया. एंड आफ्टर दैट दे टुक मी ऑन दी OS राउंड. तो जो इंटरव्यूअर था, मैंने उसको साफ साफ बताया कि आई डू नॉट हैव दी OS बैकग्राउंड. तो इफ़ यू आस्क मी एनी इन डेप्थ क्वेश्चन, आई माइट नॉट बी आंसर इट, बट ओवरऑल OS आई नो. तो मैंने साफ साफ बताया था. सो ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन ऑन दैट. बट नेटवर्किंग वाइज इट वाज वेरी गुड. सो माय बेस जो कहते हैं ना, उसमें जो मेरा जो इंटरव्यू का जो मेरा बेस बना था, वो नेटवर्किंग राउंड से बना. ओके, ओके. सो आई विल कम विथ टू ऑफ योर पॉइंट्स दैट यू हैव सेड. आपने पहले बोला कि कि जब और स्टूडेंट्स कोडिंग कर रहे थे एंड इट वाज टेकिंग यू लाइक 30 मिनट्स और सो, आपने एक इंटरनल कॉल लिया अपने आप से पूछने के लिए कि ये डोमेन मेरे लिए बना भी है या नहीं. ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट. बहुत लोग ये नहीं करते कॉलेजेस में भी. BC की बात करो, आपको तो उसका आइडिया होगा. मैं BTech की बात करता हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ यार ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है तो इसी में ही स्कोप होगा, तो इसी में चलते हैं. उनको भले पैकेज उनको दिखता पसंद आए या है ना ना, आए. उनको पैकेज दिखता है ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एग्जैक्टली. तो 6 लाख मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, 20 लाख मिल रहा है. बट अभी सच बोलो तो, आई मीन, आई वोंट डिस्क्लोज द सैलरी. इवन इन द क्लाउड यू आर गेटिंग बेटर देन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर. That's true. That's true. That's true. And second point मैं आपके इसमें आऊँगा कि you started your career but salary बहुत ही low था. And that's a true fact. अगर जो भी networking में आना चाहता है and coming from like tier 3 tier 4 colleges, ठीक है, जिसका वो brand value colleges का टैग नहीं है, तो उनके लिए तो यही मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सैलरी एक्सपेक्ट तो करो ही मत, पहली बात. मैं आपको अपने कॉलेज का नाम बताऊंगा तो तुम कहोगे कि भाई किस कॉलेज से हो, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ. तो आई एम कमिंग फ्रॉम द टियर 3 कॉलेज. एंड मैंने वोडाफोन में भी मैंने रोटेशनल शिफ्ट करी. बट द मेन पार्ट वाज दैट मुझे उधर सीखने को बहुत मिला. एंड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे मुझे जब मज़ा नहीं आती थी काम करने. माई ओनली कंसर्न वाज कि हाँ रोटेशनल शिफ्ट है. सो दैट इज समथिंग आई वाज फेड अप ऑफ. उसके बाद मैं अमेजन में आया हूँ. नाउ इट इज अ फिक्स शिफ्ट ओवर हियर. नाइस, नाइस, नाइस. तो हाँ, यही रहता है कि मतलब कि गेटिंग टू नेटवर्किंग फील्ड ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उस फील्ड में घुस जाओ. बस सैलरी वगैरह एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज नोबडी विल गिव यू सो मच अमाउंट ऑफ सैलरी इन नेटवर्किंग, क्योंकि उसको पता है कि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है. आपने कहाँ सीखा रियल वर्ल्ड में, राइट? आपने डाउटर्स नहीं देखे, स्विचेस नहीं देखे, उसको प्लग करना नहीं सीखा आपने, बेसिक चीज़ ही नहीं पता है अभी आपको. तो आपको कोई इतनी हैंडसम सैलरी तो कोई देगा नहीं अनटिल अनलेस यू आर फ्रॉम अ tier 1 कॉलेज और समथिंग, राइट? तो दैट वाज अ गुड पॉइंट. सो जब आपने एयरटेल पे जॉब की, राइट, सो आपने क्या कोई सर्टिफिकेशन किया था या फिर कोई कोर्स किए थे आपने नेटवर्किंग में आने के लिए? मुझे CCNA की ना मैंने ट्रेनिंग करी थी सिर्फ. वो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करी थी, मैं कहीं गया नहीं. मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग करी थी अलॉन्ग व्हेन आई वाज डूइंग माय BCA. तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि आइदर आई नीड टू गो टू द लिनक्स फील्ड और टू द नेटवर्किंग फील्ड, बिकॉज दे आर वेरी मच कोरिलेटेड. तो मुझे फिर इतना समझ में आ गया था. एंड देन आई वेंट टू हैदराबाद आफ्टर फिनिशिंग माय BCA. हैदराबाद में मैंने जा कर के 6 महीने मैंने नेटवर्किंग सीखी, लाइव लैब्स में सीखी. वहाँ पे राउटर्स, फायरवॉल, सारी चीज़ें मैंने सीखी. तो मेरे को जो रियल नॉलेज आई वो हैदराबाद जाकर के. वहाँ पे मैंने फिर CCNA का फिर मैंने सर्टिफिकेट किया सिस्को का. एंड आई डिड माई CEH एज वेल, सर्टिफाइड इंस्टॉलर.
एंड उसके बाद मेरे को ऑफर था हैदराबाद में ही एरिसेंट से वेयर यू हैव हाँ वर्क एज। ओके। ओह हाँ, यस यस। तो मैंने वो किया नहीं बिकॉज इट वाज कंप्लीट नाइट हाँ शिफ्ट एंड मेरे दिमाग में उस टाइम पे या था कि ट्रू मुझे नाइट शिफ्ट नहीं करनी। ट्रू। तो वो मेरी पहली ऑफर था, तो हाँ मैंने कहा कि नहीं मैं यहाँ नहीं काम करूँगा एंड देन आई मूव टू हाँ हाँ। भारती एयरटेल, वहाँ पे नॉर्मल था। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, नेटवर्किंग में काम करनी है, सीखना है, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। तो फिर मैं वोडाफोन गया एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर वोडाफोन। हाँ। तो कभी ऐसा रिग्रेट हुआ यार एडिसन छोड़ दिया मैंने, क्योंकि सिस्को टैग का प्रोजेक्ट है एडिसन के पास? नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं हुआ। क्योंकि क्योंकि मेरे को तो मेरे साथ ऐसा है वो ना कि रहती है। अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो मैं डिसीजन लेने के पहले 10 बार सोचूंगा। जब डिसीजन ले लिया या तो हाँ या ना, उसके बाद आई डोंट थिंक अबाउट इट। ठीक है, हाँ हो गया तो हो गया, बस उसके बाद कोई रिग्रेट नहीं, वो पास्ट हो गया। दैट्स अ पॉजिटिव अप्रोच। यस यस यस। तो ये चीज़ तो ट्रू रियलिटी है। जब भी आप नेटवर्किंग में आते हो एंड यू आर ज्वाइनिंग एज अ सपोर्ट इंजीनियर, बिकॉज ये सिस्को टैग, जब भी आप टैग का नाम सुनोगे, जूनिपर टैग, पालो अल्टो टैग, तो ये सब सपोर्ट जॉब होते हैं एंड दे हैव रोटेशनल शिफ्ट्स, राइट? अगर टैग में नहीं भी हो, इफ इवन इफ यू आर वर्किंग विद एन नॉक आईएसपी प्रोवाइडर नॉक जैसे मैं नॉक एयरटेल, इंजीनियर था। राइट? नॉक में एग्जैक्टली नॉक इंजीनियर, यहाँ तो यहाँ पे भी शिफ्ट होती है, यहाँ रोटेशनल शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आपको लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। लाइक इवेंचुअली आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस आपको हाँ इम्प्लीमेंटेशन में जाने का मौका मिल जाएगा, जहाँ पे आपका स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो है। But सो especially in the product-based company, you won't have the rotational shift. Reason being, they follow the sun model. एग्जैक्टली या तो एक टर्म है फॉलो द सन मॉडल कहते हैं, एफ, तो वो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ये फॉलो करती है। सो व्हाट दे डू बेसिकली इज वो ना थर्ड पार्टी लोग से कॉन्ट्रैक्ट लेती है एंड देन दे आस्क देमसेल्फ, उनको बोलती है कि ठीक है आप इंजीनियर्स हायर करो और हमारा नाम लेके करो, जैसे सिस्को टैग बट एडिसन ने प्रोजेक्ट लिया हुआ है एंड वो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, उनकी शिफ्ट होती है। बट प्रोडक्ट बेस में जो करता है उनके लिए बहुत नेग्लिजिबल चांस होता है कि वो ऑब्वियसली कि नाइट शिफ्ट करें। ट्रू। तो सौरभ भाई, जैसे कि आपने जब फिर क्लाउड में आए, आप ट्रांजिशन हुए, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस क्लाउड में आके? एंड आपने इंटरव्यू तो बता ही दिया आपका कैसा रहा है, बट हाउ डू यू, आप ये कैसे करके दोनों कंपेयर करोगे, एक कोर नेटवर्किंग एंड नाउ कोर क्लाउड? स्टार्टिंग में तो भाई बहुत चैलेंजेस थे। स्टार्टिंग स्पेशली फॉर द 3 months because I was a core networking guy, router, switches, firewall. So those were my favorite part to work on. इधर आया so it was all the console thing and I was like यार कहाँ आ गया मैं। तो फिर मैंने हाँ जो उसका सर्टिफिकेट था AWS Solution Architect Associate वाला, वो मैंने सर्टिफिकेट किया। आई गेव माई 1 month एंड इट वॉन्ट लाइक, जब आप अमेजन ज्वाइन करोगे देन दे विल गिव यू इनफ टाइम टू गेट फैमिलियर विद द प्रोसेस, योर कलीग्स एंड ट्रू। मैनेजर। ऐसा नहीं करेंगे कि आपको 1 महीने के बाद आपको कह देंगे कि तुम्हें बस करना ही करना है, ऐसा नहीं करेंगे। So they will give you all the training and all. So I was getting trained on various services, Route 53, VPC, or Direct Connect, VPN, side-to-side VPN, client VPN. उसमें से कुछ सर्विसेज थे तो जो मेरे ऊपर से जा रहे थे, कुछ थे जो आई वॉज एबल टू ग्रैप्स देम। तो मैंने कहा कि ओके आई सिलेक्ट दीज सर्विसेज। आई सिलेक्टेड 5 सर्विसेज कि हाँ दीज सर्विसेज आई कैन वर्क अपॉन वेरी नाइसली। लोड बैलेंसर वॉज वन ऑफ देम एज वेल। तो मैंने उनमें से कुछ 5 सर्विसेज सेलेक्ट किए एंड आई वेंट टू माय मैनेजर, दीज आर द सर्विसेज आई एम गेटिंग ग्रैप्स ऑन, लेट मी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड देन ग्रेजुअली आई विल पिक अप द अदर सर्विसेज। सो दे वर क्वाइट ओके विद इट। मैंने वो वैसे पिकअप किया एंड स्टिल डायरेक्ट कनेक्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट सर्विसेज बिकॉज उसमें BGP है एंड आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन BGP एंड VPN, क्लाइंट VPN एंड TJW। So these are the main services I work upon. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने सर्टिफिकेट भी किया उसका सोल्यूशन आर्किटेक्ट वाला। धीरे धीरे आपको क्लाउड का आइडिया होने लगा बिकॉज यू नो अंडरलाइन आपको पता है कि अंडरलाइन नेटवर्किंग ऐसी है, तो फिर आपको सारी चीज़ें बैक ऑन दी ट्रैक आ जाती है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 महीने लगेगा बिकॉज किसी भी आप कंपनी में जाओ तो आपको पूरा प्रोसेस वाइज एंड एवरीथिंग आपको टाइम लगेगा पूरा ग्रैस्प करने दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ये तो है, ये तो है। एंड सैलरी तो रिवील, मैं इस थियरी में बिलीव नहीं करता हूँ कि सैलरी रिवील करनी चाहिए। मैंने बहुत यूट्यूबर्स को देखा है कि सैलरी रिवील करके एक्स्ट्रा लग्जरियस पैकेज दिखा देते हैं, जो कि ट्रूथ तो होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, राइट? बिकॉज दे हैव RSUs, जॉइनिंग बोनस, ठीक है, ये सब रहता है, वेरिएबल्स पे। बट
I would ask you one thing. Coming into Amazon or more specifically into cloud, so salary तो obviously अच्छी होगी, right? I mean, as compared to what you were getting in Vodafone like and Airtel. network-based company, exactly. Although you were a fresher at that moment, but still, compared to cloud, salary हमेशा ज़्यादा है cloud की, Right. Yeah. And Okay. That's nice. and it is a very well growing industry. Cloud is a growing industry compared to the traditional networking, क्योंकि उनका पूरा setup MPLS वगैरह पे है. Now we have cloud and it is a growing industry, be it AWS, Microsoft or Oracle, any cloud you take, it is a growing industry. So if you are getting some opportunity in there, I would say that you can start from there. It's a good field to start with if you have interest in it. अगर आपका interest कोडिंग वगैरह में है, then you can move there as well. Because I have colleagues जो यहाँ पे एज अ क्लाउड इंजीनियर ज्वाइन किए थे, एंड इंटरनली दे मूव टू दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. उनका उसमें इंटरेस्ट. Correct. SD profiles. True. 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 तो ये तो है. तो सैलरी तो बैरियर सोचना ही मत whenever you are coming to a cloud. ठीक है. It's just about your interest कि आपको इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है क्लाउड में. स्पेशली फॉर द यंग So- पीपल हु आर स्टिल इन द ग्रेजुएशन फील्ड और जस्ट कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज, एटलीस्ट एक हफ्ते अपने आप को टाइम दो एंड यू आस्क योरसेल्फ डेली कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, बी इट डेटा स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, व्हाटएवर इट इज, एक बार अपने आप को पूछो कि क्या तुम सच में इसमें आगे जाना चाहते हो, कि और यू आर जस्ट स्टडिंग इट कि तुमको इसको पढ़ने के बाद तुम्हें एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी, या तुम्हारे किसी फला दोस्त ने ऐसा किया था तो तुमको उसमें सैलरी मिल जाएगी. दैट इज समथिंग, दैट इज द ओनली क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ जब मैं नेटवर्किंग में जा रहा था या मैंने इंटरव्यूज रिजेक्ट किए थे एट द टाइम व्हेन आई जस्ट गॉट ग्रेजुएटेड. मैंने जॉब रिजेक्ट किए. मेरे सारे दोस्त कह रहे थे कि भाई बेवकूफ़ है क्या, तो इतना लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब वाले को रिजेक्ट कर रहा है. मैं कह रहा हूँ मुझे करनी नहीं है जॉब. तो सही बात है. तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप आखिर किस चीज़ के लिए बने हो, और आपको उस चीज़ समझ में आ जाए ना, तो फिर आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं. कहते हैं ना, ऊपर वाला रास्ते खुलते जाता है. That's true. That's true. बस डेडिकेशन से अपने एक डोमेन पकड़ लो और उस डोमेन को पढ़ते रहो, इतना डीप पढ़ लो कि मतलब जब तो क्रैक मुझे हो ही नेटवर्किंग का एन नहीं पता था. मैंने यूट्यूब किया कि नेटवर्किंग बेसिक ट्यूटोरियल. आई स्टिल रिमेंबर जगविंदर सिंह टेंड करके कोई ट्यूटोरियल था उनका. हाँ True, हाँ, true, तो हाँ, CCNA के उनके वीडियोस थे. मैंने 15 दिन में लगा के उनके सारे वीडियो देख मारे, एंड फिर मुझे समझ में आया कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ आराम से. फिर जब मैं पढ़ने गया तो मुझे समझ में आया कि यार ये ऐसे ऐसे होगा. तो वो रास्ते सो दिस इज नॉट अ प्रमोशनल हाँ. वीडियो. हाँ, ये कोई प्रमोशनल नहीं है कि वो ये बोल रहे हैं, ठीक है. वो बस अपना बता रहे एक्सपीरियंस तो शेयर मैं कर बस रहे मैं हैं. इतना कह रहा हूँ कि जब आप मतलब आप चाहोगे कि आपको इस चीज़ में काम करना है, तो आपके सामने रास्ते निकलेंगे. यूट्यूब भरा पड़ा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जाके पेड 1,000 रुपये 2,000 रुपये दे करके पढ़ो. अगर पैसे नहीं है तो मैंने तो सारा कुछ फ्री से पढ़ा. सिर्फ जो मैं हैदराबाद में गया पढ़ने उसके लिए मैंने पैसे दिए. अदर देन दैट यूट्यूब जिंदाबाद. दैट्स ट्रू. दैट्स ट्रू. ये तो है. आजकल यूट्यूब में इतने सारे फ्री रिसोर्सेज हैं कि आप कहीं से ही पढ़ सकते हो. बट स्टिल व्हाट आई बिलीव इज, अगर आप अपने पढ़ाई पे पैसे खर्च भी कर रहे हो ना, वो आगे जाकर आपको हेल्प भी करेगा, बेनिफिशियली रहेगा. इफ यू कैन अगर आप उतने पैसे दे सकते हो तो. एक can't, तो एक बहुत सारे वेबसाइट है, free मैंने materials जहाँ भी से है. बहुत कुछ पढ़ा. मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ. इट्स रियली अ गुड वेबसाइट, urduitacademy.com. if people do not know about it, they can keep a note of it. Urdu IT Academy. Yes. उधर पे स्पेशली फॉर द नेटवर्किंग वो बहुत अच्छे टीचर हैं, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सब हिंदी और हिंदी हिंदी में हाँ, भी बताते हो. इकबाल नाम है, वो बहुत ही सीनियर लेवल का. हाँ, हाँ. कौशिक हाँ, कौशिक हाँ, इकबाल, कौशिक नाम. करेक्ट. हाँ. मैंने देखा था जब मैं भी अपने लास्ट ईयर में फाइनल ईयर पे था या जॉब कर रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने वो रेफर किया था वीडियोस. काफ़ी कुछ है उसमें. आप अगर उनका वीडियो सो नाइस. पढ़ लोगे ना, तो आई कैन से कि आप जो बाकी के जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं आप उनसे बेटर कर लोगे. दैट्स ट्रू. तो सौरभ भाई, सिंस आपने दोनों डोमेन से आए हो, आप कोर नेटवर्किंग एंड कोर क्लाउड, तो पहले हम बात करेंगे कि कोर नेटवर्किंग में अगर किसी को जाना है एज अ कॉलेज फ्रेशर, तो उनको क्या क्या स्किल्स अभी आने चाहिए? सबसे पहले तो ओएस का फंडामेंटल पढ़ लो, विंडोज़ हो या लिनक्स हो. आई एम नॉट सेइंग कि इंडेक्स पढ़ो, फंडामेंटल पढ़ लो उसका, कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, रैम कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें उसको अच्छे से पढ़ लो. उसके बाद देन यू मूव टू दी नेटवर्किंग बेसिक. नेटवर्किंग बेसिक पढ़ने के लिए CCNA के वीडियोस देखो. यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हैं, वो देख लो, या तो फिर वो उर्दू IT अकेडमी मैंने बताई,
उसमें CCNA का पूरा उन्होंने कोर्स डाल रखा है। कौशिक नाम है उनका। ही इज़ अ वेरी गुड गाय। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शायद टोटल 40 से 42 वीडियो हैं। ईच वीडियो इज़ ऑफ 40 to 50 मिनट्स। वो देख लो, आपको CCNA समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। इवन अगर आपने उनको अच्छे से देख लिया तो आप CCNA का एग्ज़ाम घर बैठ के निकाल सकते हो। बस आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में या GNS में अपनी लैब की प्रैक्टिस करो, आपको CCNA का सिस्को का एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये 2 ट्रू। चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली, आपको स्टार्टिंग में ये नेटवर्किंग की सपोर्ट लेवल की आपको जॉब मिल जाएगी नॉक इंजीनियर में, जिसमें मैं था। एंड व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी एज अ नॉक इंजीनियर, आप नॉक इंजीनियर में भी आगे जा सकते हो। जैसे मेरे के था नॉक इंजीनियर 2, नॉक इंजीनियर 3 एंड देन दी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। एक ये रास्ता है आपका नेटवर्किंग, कोर नेटवर्किंग। बट मुझे उसमें नहीं जाना था क्योंकि मुझे रोटेशनल शिफ्ट में मज़ा नहीं आ रही थी। मेरा मेन वो था, मेरी हेल्थ बहुत दिक्कत दे रही थी, तो मैं नहीं काम कर पा रहा था। तो फिर मैंने चूज़ किया कि आई विल गो टू दी क्लाउड। ऐसा कर सकते हैं आप। हाँ, दैट्स नाइस। मतलब ये एक सिंपल दैट्स सा नाइस। तरीका है। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना, कोई जिग-जैग रास्ता नहीं। सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। वो विंडोज़ एंड लिनक्स, ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम सीख लो अच्छे से। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है। एंड देन यू मूव टू द CCNA। जब आप CCNA की वीडियोस देख लो, यू विल बी कंफर्टेबल टू गिव द एग्जाम। इफ यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल, देन यू कैन अप्रोच एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट। स्पेशली हैदराबाद में मैं जब गया था, तो वहाँ बहुत चीप एंड बेस्ट एजुकेशन है। 4-5 हज़ार रुपये में आपको CCNA की वो ट्रेनिंग करा देंगे। एंड हाँ, सिस्को की जितनी हुई फीस हो, जब मैंने दिया था तो $300 के आसपास की फीस थी। अब शायद बढ़ा दी हो, मुझे नहीं पता। तो दैट इज़ समथिंग यू कैन डू। करेक्ट करेक्ट। अब सौरभ भाई ने एक चीज़ बोला यहाँ पे, सिस्को पैकेट ट्रेसर और GNS3। तो जिसको ये नहीं पता है वो मैं ये बता दूँ, ये एक सिमुलेटर है, ठीक है। बिकॉज आप राउटर्स तो खरीद के लाओगे नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत लाख्स के होते हैं, लैक ऑफ रुपीज़ के होते हैं वो राउटर्स, ठीक है, स्विचेस। तो क्या होता है, एक पैकेट ट्रेसर मिल जाता है, फ्री टू डाउनलोड है सिस्को की साइड से, सिस्को पैकेट ट्रेसर और GNS3 भी। तो अब ये फ्री टू डाउनलोड हो सकता है, और इसमें आपको डम्प्स मिल जाते हैं। डम्प्स मतलब कि डमी डिवाइसेस, वर्चुअल डिवाइसेस दिख जाते हैं, which behave as a router, which behave as a switch, behave as a PC, ठीक है। तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो और आप पढ़ सकते हो उसका। मैंने तो पूरे कॉलेज प्रोजेक्ट, इनफैक्ट मेरा माइनर प्रोजेक्ट, मेरा मेजर प्रोजेक्ट मैंने पूरा पैकेट ट्रेसर में ही बनाया था। पूरा फ्लो दिखा के, AIGRP, OSPF, मल्टी राउट बना के, अलग अलग दिखा के ये सब किया था मैंने, ACLs वगैरह। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने तो प्रोजेक्ट कमिंग, बोला, तो प्रोजेक्ट से मुझे एक चीज़ याद आ गई। वन आई वाज इन हाँ कॉलेज, हाँ, तो सारे लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे। किसी ने वेबसाइट बनाई, और किसी ने शॉपिंग वेबसाइट बनाई, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया कि उसने यहाँ से ऐसा कुछ किया, वो हो गया। अब आई वाज फ्रॉम दिस, मैंने उस समय लिनक्स सीखा था। एंड नेटवर्किंग नहीं सीखी थी, मैंने लिनक्स सीखा था HP से। तो मुझे लगा यार मैं क्या बनाऊँ, इसमें क्या प्रोजेक्ट बनाऊँ मैं लिनक्स में। तो मैंने ना उसमें एक एक्टिव डायरेक्टरी कंट्रोलर बनाया था खुद का। जो सेंट्रलाइज्ड आप देखते हो ना, कि आपके जब आप अल्ट कंट्रोल डिलीट दबाते हो तो सेंट्रलाइज लॉगिन होता है, उसका एक पूरा AD कंट्रोलर बनता है। तो मैंने वो पूरा AD कंट्रोलर बनाया था, एक अपने लैपटॉप में पूरा सिमुलेट करके। मेरे पास वो वाला लैपटॉप था, वो जो भारत सरकार वाला लैपटॉप है ना, अखिलेश यादव का। अच्छा, मेरे पास वो ओके, लैपटॉप था, एंड हाँ, मैं उस लैपटॉप पे काम कर रहा था। और मेरे दूसरा लैपटॉप था भी नहीं मेरे पास। उस लैपटॉप की मैंने रैम बढ़ा दी थी, तो वो एकदम बड़े चलते थे। उस लैपटॉप पे मैंने पूरा वो बनाया, एक्टिव डायरेक्टरी कंट्रोलर। अब वो जो वहाँ के जो मेरे जो वो थे टीचर लोग, वो कहते तुमने ये क्या बनाया? कहती है, मैंने कहा कि सर ये एक्टिव डायरेक्टरी कंट्रोलर है। कहते ये क्या होता है? उनको मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये चीज़ होती क्या है। नहीं तो आती है। मेरा पॉइंट ये है ट्रू। बताने का कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ कर रहे हो, और जो जिस चीज़ में आपको नॉलेज है, वो सामने वाले को पता हो। आप जिस लेवल पे हो अभी, आप जिस लेवल ट्रू। पे हो अभी, अब जब मैं जैसे मैं छोटे कॉलेज से आया हूँ, वो उन टीचर लोगों तक तो नहीं पता था कि वो AD कंट्रोलर क्या होता है, बट मुझे पता था कि AD कंट्रोलर क्या है। और अभी जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पता है, बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट वेरी सेम इंडस्ट्री। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का है कि अगर आप कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हो जो अगले सामने वाले को नहीं पता, या उसको डिसअप्रूव कर रहा है, तो यू डोंट गेट डिसहार्टेंड। आप उसमें अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। आपको ये नहीं लगे कि आप किसी गलत फील्ड में पड़े हो। अगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस है, फिर दैट्स जब ट्रू। मैंने वो बताया AD कंट्रोलर, मैंने बताया था, जब मैंने इंटरव्यू में मैंने वो चीज़ बताई कि मैंने AD कंट्रोलर बताया था, तो ही वाज लाइक कि तुमने कैसे बनाया, मतलब इवन व्हेन यू वर इन द ग्रेजुएशन, बिकॉज दैट्स अ बिग थिंग। उसमें आप मैंने 10 कंप्यूटर कनेक्ट किए वर्चुअली, और फिर मैंने उसको पूरा कंट्रोल किया। तो बोले दैट्स अ बिग थिंग, आपने कैसे कर लिया ग्रेजुएशन? तो मेरा पॉइंट ये है बताने का कि आप जब कर रहे हो ना, तो उसको
पूरे ईमानदारी से करो, पूरे भरोसे के साथ करो कि ये चीज़ें मुझे आगे कुछ ना कुछ तरक्की मिलेगी। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। तो अभी आपकी जो आपने बोला ना, उससे मुझे भी अपने बीटेक के डेज याद आ गए। तो इवेंचुअली क्या होता था ना, जब मैं प्रोजेक्ट बनाता था, बिकॉज आई वाज सेकेंड या थर्ड ईयर में, तो मुझे पता ही था, कॉन्फिडेंस था कि अब मैं नेटवर्किंग में ही जाऊँगा। मुझे कोई सॉफ्टवेयर वॉज अ फील्ड जो मुझे अट्रैक्ट नहीं करती थी कभी भी। ठीक है, तो मैंने ना माइनर प्रोजेक्ट बनाया था पैकेट ट्रेसर में। और हमारे कॉलेज में टू बी ऑनेस्ट एक या दो टीचर ही फैकल्टी होंगे जिनको थोड़ा बहुत नेटवर्किंग पता था, राइट। अब ये नहीं कि उन्होंने पैकेट ट्रेसर में काम किया था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, और बाकी उन्हें तो किया ही नहीं था, बाकी सब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ही कहते थे, है ना। तो दे वर ऑल्सो लाइक कि मतलब कि क्या करोगे आगे जाके, यू नो व्हाट यू विल डू, इसका स्कोप ज़्यादा नहीं है। बट व्हेन आई वाज, बट जब मैंने सोचा था, व्हेन आई डिसाइडेड, आई वाज जस्ट स्टिक टू दैट पाथ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनर भी उसमें बनाया, मेजर भी उसमें बनाया। ठीक है, तो मेजर फाइनल ईयर तक आते आते उनको लग गया था कि नहीं यार, ये जो बंदा है ये नेटवर्किंग में ही जाएगा, ठीक है, ये और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ नहीं कभी, बिकॉज नेटवर्किंग की तो बहुत नेग्लिजिबल है जो कैंपस में आती है, पहली बात। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो फिर मतलब ऐसे धक्के खाए बाहर जाके, यू नो ग्रेटर नोएडा गया, धक्के खाए, कहाँ इंटरव्यू में गए, कहीं फेल हो गए, करते करते फिर एक कंपनी मिली, वहाँ 4 महीना किया। उसके बाद सिस्को टैक एडिसन में फिर इंटरव्यू का पता चला कि यहाँ इंटरव्यू है, वहाँ गया तो फाइनली हो गया। तब जाके फिर मैंने वहाँ पे स्विच कर लिया, तब से जाके आज फिर हम यहाँ पे हैं। तो यह इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, दो अभी इतना एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं है, बट स्टिल यस। तो सौरभ भाई, बात करते हैं अब नेटवर्किंग की, तो आपने बता दिया। बात ये करते हैं कि अब क्लाउड में आने के लिए स्पेसिफिकली तो हमें क्या करना चाहिए। टू क्वेश्चंस, ठीक है। एक तो क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर जो AWS है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है या फिर गूगल है, जो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स बोलते हैं वो लोग अपने आप को, तो सब सेम ही है। तो इसमें प्रोफाइल में आने के लिए क्या करना चाहिए, और किसी को अगर इम्प्लीमेंटेशन में जाना है लाइक आर्किटेक्चर, ठीक है, या फिर सोल्यूशन डिज़ाइनर वगैरह, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पाथ क्या है। सीधी सी बात है कि जब आप स्टार्टिंग में आ रहे हो ग्रेजुएट होकर के, आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की जॉब नहीं मिलेगी। हम्म। ये दिस इज द बिटर ट्रुथ। या आप कोई भी अगर आपको बोले ना, कोई भी बंदा आपको बोले कि तू ग्रेजुएशन कर ले, तेरे को सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल दे देंगे, वो नहीं देंगे, बिकॉज यू डो नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस एंड दैट एक्सपर्टीज येट। इवन दो तुमने चाहे जितने सर्टिफिकेट कर लिए हो, चाहे एडवांस नेटवर्किंग को कर लिया हो, चाहे CCI कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, वो तुम्हें नहीं देंगे रोल, ट्रू। बिकॉज यू नीड टू गो थ्रू दी सर्टन प्रोसेस टू गो टू दैट रोल। जैसे मैं अभी CSE 1 टू टू गो टू बिकम दिस थिंग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, मुझे पहले CSE 2 बनना पड़ेगा एंड देन आई कैन मूव देयर। तो वो वो चीज़ आपको समझ में आती है कि आपको कैसे जाना है वहाँ। अब एंट्री कैसे करनी है इसमें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लाउड का बेसिक आर्किटेक्चर नेटवर्किंग है, तो सबसे पहले आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। इवन दो तुम सर्टिफिकेट मत करो CCNA का या किसी का, दैट इज फाइन, बट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर आपको डायरेक्टली क्लाउड में आना है, देन इट इज़ अ प्लस पॉइंट कि आप AWS का कोई सर्टिफिकेट कर लो या माइक्रोसॉफ्ट का, जिस भी आप क्लाउड में जाने का इंटरेस्ट है। तो मैंने AWS में किया क्योंकि AWS इज, आई फील कि वो मोस्ट ईजिएस्ट है बाकी सबसे, इस वजह से मैंने AWS चूज़ किया। आप AWS का सर्टिफिकेट कर लो, आप आपके वो रिज्यूमे में 4 चांद लगा देगा, स्टार, इट विल ऐड स्टार टू रिज्यूमे। और दिस इज़ योर एंट्री लेवल, यू कैन गेट अ एंट्री लेवल जॉब। जैसे मैंने एंट्री लेवल करी AWS के एसोसिएट से, इवन दो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एसोसिएट लेवल, यू विल गेट paid good, you will have good exposure. करेक्ट। Within a year or 1.5 year, you can move to the CSE 1 or even in the shorter period of time. यहाँ पर अमेजन में ऐसा नहीं होगा कि आपने आज ज्वाइन किया तो आपको 1 साल ही वेट करना है प्रमोशन के लिए। आप 6 महीने के अंदर भी प्रमोशन ले सकते हो एज पर योर परफॉर्मेंस। आपके ऊपर करेक्ट, डिपेंड करता है, आप अगर स्लो स्लो जाना चाहते हो, आप 1 साल में हो, 1.5 साल में, आपके ऊपर। करेक्ट, करेक्ट। तो अगेन दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, ये नहीं कि वो अमेजोन में जॉब करे तो वो अमेजोन के बारे में बता रहे हैं, उसके तारीफ कर रहे हैं। इट जस्ट ही इज शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी में जॉब किया एंड स्टिल डूइंग द जॉब, तो उनको पता है कि यहाँ प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, राइट। इन द फ्यूचर सब कुछ अच्छा रहा तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल कोलैब विद सम इंजीनियर्स हु इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, जो यही प्रोफाइल में है, एंड देन वी कैन हियर कि उनका प्रोसेस कैसा होता है, राइट। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप एटलीस्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट तो जैसा आपने बताया कि एज अ फ्रेशर तो होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इफ़ सम कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये बोल रहे हैं कि ब्लफ कर रहे हैं आपको, यू नो कि ये बोल के कि यू नो कि हम आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट में लगवा देंगे आफ्टर प्लेसमेंट, तो मत पढ़ना उस ब्लफ में। या दैट्स ट्रू। सो
सौरभ भाई, सिंस यू हैव चेंज्ड 3 कंपनीज, तो थोड़ा ये टिप दे दीजिए कि रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए लोगों को. शुड इट बी वेरी लॉन्ग, लाइक 3 पेज 4 पेज, और शुड इट बी लाइक बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प विद इन 1 पेज हो या 2 पेज हो? मतलब थोड़ा बहुत बता दीजिए कि फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए. भाई जब मैं अमेजन में इंटरव्यू दिया था, एट दैट टाइम मेरा एक पेज का रिज्यूम, हम्म. और अभी मैंने रिसेंटली अपडेट किया है तो वो 1.5 पेज है. ओके. आई हैव 5 years of experience. मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में 1.5 पेज का है मेरा रिज्यूम. हाँ. तो माई आंसर इज़ वेरी सिंपल कि जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उसको उतना ज़्यादा अच्छा है. वो कोई नहीं पढ़ेगा आपका, वो जो सब मेंशन करते हैं ना, मदर्स नेम, पेरेंट्स नेम, पापा का नाम, घर घर का पता, वो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, हाँ. कोई नहीं पूछेगा आपसे. अगर इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड होगा देन दे विल सिंपली आस्क कि आप कहाँ से, वेरी सिंपल. हम्म. तो मैं आपसे पूछूँ आप कहाँ से हो, वो इतना पूछेगा आपसे, वो नहीं पढ़ेगा भाई सबके कहाँ से. वो मेन फोकस शुड बी ऑन योर स्किल. वो हाईलाइटेड होने चाहिए. योर एजुकेशन बैकग्राउंड वो हाईलाइटेड होना चाहिए बस. उसमें आपका परसेंट वगैरह भी मैटर नहीं करता. मेरा जो ग्रेजुएशन परसेंट था वो 65%. अब नॉर्मल ग्रेजुएट, बट मेरी जो स्किल थी नेटवर्किंग की वो अच्छी थी, उसमें मेरा फोकस था. मेरी स्किल में अगर कुछ लोग 2 लाइन लिख रहे हैं तो उसमें मेरे 4 लाइन थे कि नेटवर्किंग में मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, DSCP भी आता है, टोरा भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं, ARP भी आता है, RARP भी आता है, फायरवॉल्स आती हैं. आई रिमेंबर फायरवॉल पे ना एक टर्म चला करता था पहले, स्टेटफुल, स्टेटलेस, हाँ जोन हाँ हाँ. बेस्ड फायरवॉल, है ना. वो अब नहीं यूज़ करते थे. वो टर्म अब यूज़ नहीं होता, वो पहले यूज़ होता था. तो मेरे रिज्यूम में वो मेंशन था क्योंकि मैंने पढ़ा था पहले जो उस हाँ. टाइम पे. अब वो नहीं यूज़ होता. तो मैं जब इंटरव्यू देने गया था AWS में, तो मैं पूछा भाई कि तुमने ये क्यों लिखा है, कहते ये टर्म नहीं यूज़ होता. मैंने कहा सर मुझे पता है तो इसलिए मैंने लिखा. ट्रू. ट्रू. ये तो है, ये तो है. तो तो रिज्यूम में जितना जितना नीट एंड क्लीन रखो, जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, उतना ज़्यादा अच्छा. हाँ, और टर्मिनोलॉजी भी अपडेटेड रहो. ठीक है, इससे हमें ये सीख मिलती है. ओके. तो सौरभ भाई, मुझे ये पूछना था कि नेटवर्किंग का तो आपने बता दिया कि कहाँ से फ्री कोर्सेज आप देख सकते हो, राइट? अब वैसे ही नेट क्लाउड में अगर किसी को जाना है तो फ्री कोर्सेज वगैरह अगर आपके नज़र में कुछ है, ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रमोशनल बट स्टिल, जो आप रेफर कर सकते हो कोई मैं स्टूडेंट्स जब को. सीख रहा था, मैं जब सर्टिफिकेट कर रहा था अपना, तो देयर वर 3 रिसोर्सेज आई फॉलोड. ओके. वन इज ए क्लाउड ग्रुप. हमको AWS एम्प्लॉइज़ को उसका फ्री एक्सेस रहता है, सो प्रॉब्ली यू गाइस विल नीड टू परचेज इट. करेक्ट. तो हमको तो फ्री एक्सेस था, मैंने वहाँ से वीडियोस देखे एक क्लाउड गुरु के. बट उसमें से कुछ वीडियो समझ में नहीं आ रहे थे मेरे को, बिकॉज दैट वाज वेरी फास्ट पेस्ड फॉर मी. तो मैं यूट्यूब पे गया मैंने, और वो उर्दू IT अकेडमी, वहाँ पे भी वीडियोस हैं उसके. तो मैंने वहाँ से भी मैंने ये उर्दू IT अकेडमी से 4-5 मैंने वीडियोस देखे जहाँ पे मेरे को डाउट था, वहाँ से क्लियर किया. और उसके बाद यूट्यूब पे एक बंदा है, क्या नाम है उसका, कोई राजपूत करके है, भूपेंद्र राजपूत. अच्छा, टेक्निकल हाँ, गुफ्तगू. टेक्निकल गुफ्तु. अच्छा हाँ. अच्छा अच्छा. हाँ हाँ. हाँ, तो मुझे उसके वीडियो काफ़ी अच्छे लगे थे. स्टार्टिंग में हम्म. बेसिक से था, तो मैं, मेरे लिए ऑफ कोर्स क्लाउड पूरा न्यू था, तो मैंने उसके वीडियोस भी देखे थे. मुझे वो बहुत आसान भाषा में बताता है बंदा. करेक्ट. हाँ, मुझे उसके वीडियो अच्छे लगे थे. दीज 3 रिसोर्सेज आई रिफर्ड फॉर वीडियोस ना. बट मैंने जो सबसे ज़्यादा सीखा, मैंने वो एक क्लाउड गुरु से सीखा. उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ था. उसके करेक्ट. बाद जब मुझे एग्ज़ाम देना था ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, AWS का, तो फिर विज लैब्स करके साइट है, विज लैब्स से मैंने सैम्पल पेपर्स वगैरह दिए थे, वहाँ से मैंने इसका सर्टिफिकेट क्रैक किया. ओके. ओके. तो व्यूअर्स के लिए यही सजेशन है कि कोई इंजीनियर अगर अमेजोन पे, गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे जॉब करे तो ये मत सोचो कि यार वो कहाँ से पढ़ रहा होगा. वो भी नॉर्मल कैंडिडेट है, हम भी नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, जो हम भी फ्री या रिसोर्सेज कुछ भी मिलता है तो हम भी उसको देख लेते हैं एक बार कि मतलब कैसा है. एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट फिर हम उसको पढ़ते भी हैं. तो एज अ नॉर्मल स्टूडेंट वो भी वही पढ़ते हैं, हम भी वही पढ़ते हैं. जस्ट द अप्रोच कि आप कितना डेडिकेट करते हो, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है दोनों इंजीनियर्स के बीच में. So yeah, that's a very good point. So any एंड tip? अदर देन पढ़ने के साथ साथ ना मैं उसको रेप्लिकेट ज़रूर करता था, चाहे वो उसमें जितना टाइम लगे, मैं उसको अपना कंसोल खोल के उसको रेप्लिकेट करता था. एंड अलॉन्ग विद द रेप्लिकेशन मेरे दिमाग में 4-5 सिनेरियो आ जाते थे कि अगर अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा. तो वो 4-5 सिनेरियो में रेप्लिकेट करता था, तो वो पूरा पार्ट VPC का पार्ट इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा.
तो कहा था ना यही पे डिफरेंस आ जाता है थिंकिंग का, वही थिंकिंग का यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, इसको अडेप्ट कर सकते हो, कुछ नहीं है, जो भी आप पढ़ते हो उसको रेप्लिकेट करके देखो, यू नो कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे ये कैसा बिहेव करेगा, तब जाके आपको क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपको तभी बिल्ड होता है, ठीक है, तभी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, राइट। तो सौरभ भाई, ऑन दिस नोट मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एज अ फ्रेशर एंड एज अ एक्सपीरियंस फोक्स आप क्या सजेशन दोगे दोनों को, डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस। देखो, फ्रेशर हो तो सीधी सी बात मैंने पहले ही बोली कि अपनी इनर कॉलिंग को पहचानो, अपने आप को टाइम दो 7 से 10 दिन का, एंड अगेन एंड अगेन कीप आस्किंग सेम क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि आखिर ये जो तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद आपको अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि हाँ, ये करना है, ये नहीं करना। दैट इज़ द फर्स्ट सजेशन। उसके बाद जब वो चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर दुनिया के मसले में फिर अपने से बस। उसके बाद जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, सीधी सी बात है, जब इंटरव्यू देने जाओ तो पूरा कॉन्फिडेंस से जाओ, बोल्डनेस के जाओ, और दिमाग में बस यही रखो कि नहीं होगा तो इससे ज़्यादा क्या होगा, बस आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। सही बस बात है। दिमाग में इतना रखो कि नहीं हुआ तो इससे ज़्यादा क्या होगा, मैं मर नहीं जाऊँ, दूसरी कंपनी में जाऊँ, चाहे फिर वो अमेजन का इंटरव्यू हो या सिस्को का हो। अमेजन ज्वाइन करने से पहले मेरे पास 4 ऑफर थे, सिस्को का था, अच्छा। आईटीसी का था, माइक्रोसॉफ्ट का। ओके। आई ज्वाइन अमेजन जस्ट बिकॉज मेरे को वहाँ पे मेरी शिफ्ट अच्छी थी। हाँ। नाइस नाइस नाइस। एंड एक्सपीरियंस फोक्स को आप फिर क्या सजेशन दोगे। यार एक्सपीरियंस को, वो खुद एक्सपीरियंस है भाई, इन सारी चीज़ों को जानते हैं वो सब कुछ। हाँ। हाँ, ऐसा कोई सजेशन नहीं दूंगा एक्सपीरियंस को, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस फोक्स उनकी थॉट प्रोसेस सेम रहती है जिससे हम लोगों की, कि अप्रोच कैसे करें, उतना ही है। और ठीक है, कोशिश ये भी बात कोशिश सही ये है। करें प्रेशर जो है कि वो मतलब स्टार्टिंग, मतलब मेरा ये मतलब पर्सनली मानना है कि जब अगर आपको स्टार्टिंग में ना आपको एकदम कंफर्टेबल माहौल मिल जाता है ना, तो आप ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, है ना। तो मैं जो आया हूँ, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी से आया, एयरटेल भी थी सर्विस बेस्ड, वोडाफोन भी सर्विस बेस्ड थी। एंड ये फैक्ट है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में काम ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड। तो अगर आप, मैं ये नहीं, आपको बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं सजेशन ये दे रहा हूँ कि अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर लो 1-2 साल, तो आपको फिर जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आओगे, तब यू विल रियलाइज दी यू विल रियलाइज कि आपको वो क्या चीज़ मिली है और आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। करेक्ट करेक्ट। इस पॉइंट पे माइट बी इन फ्यूचर मैं शायद एक सिस्को टैक या किसी के साथ वीडियो कोलैब कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्किंग इन अ थर्ड पार्टी कंपनी और वर्किंग इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कितना डिफरेंस आता है वर्कलोड का, टिकट्स का जो आपका असाइन होते हैं। तब आपको पता चल जाएगा कि सौरभ भाई अभी जो बोल रहे हैं वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। दैट्स सो ट्रू। या तो ठीक है सौरभ भाई, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बस इससे पहले अगर आपको कुछ सजेशन देना है और वांटेड टू एंड ऑन अ नोट, तो क्या आप देंगे सजेशन। दैट इज़ ऑल दीपक। और मैं कोर नेटवर्किंग से हूँ, एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि कोर नेटवर्किंग वाले कितने लोग हैं फ्रेशर पे या एक्सपीरियंस से। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जब आप कोर नेटवर्किंग पे आओ, तो अपना जो आपका जो OSI लेवल और TCP लेवल, ये सारी चीज़ें आपको जो बेसिक है, इसको एकदम आप स्ट्रांग करो, एंड फिर आपको कोई नहीं कुछ होगा। फिर चाहे कंपनी में, फिर चाहे जितना लोग आपके साथ जो हो, आप यही कहोगे ना कि ठीक है, एक कंपनी में निकाला जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरे का दरवाजा खुला हुआ है मेरे लिए, 1 महीना नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, कोई ना कुछ मिल जाएगा आपको। ये आपके दैट्स दिमाग ट्रू। में ना, फिर आपके माइंडसेट आ जाएगा दिमाग में। सो ट्रू सो ट्रू। सो यार मेरा चैनल का पर्पस पता है ओपन करने का यही है कि मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख सकते हो, अलग अलग अमेजोन पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे, बट साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, क्लाउड के लिए बहुत कम ही जो यूट्यूबर्स है, जितना मुझे भी पता नहीं है कि कौन कौन है स्टिल, बट हाँ वो भी बहुत कम है जो ऐसे कोलैबोरेशन करते हैं। तो मेरा यही फोकस है कि जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं राइट, तो मैं उनको एज अ वीडियो में इन्वाइट कर सकूँ एंड उनके एक्सपीरियंस शेयर कर पाए हम दोनों मिलके, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं उनको एटलीस्ट कुछ तो सजेशन मिलेगा। क्योंकि हमारे टाइम में हमारे पास कोई नहीं था गाइडेंस करने वाला, टू बी ऑनेस्ट। हम बहुत लोग ऐसे धक्के थे कि खाए हैं। मतलब कि बहुत धक्के खाए हाँ, और अंधेरे में तीर चला के गए हम ठीक लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या ही हो जाएगा, ये एटीट्यूड था, नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है कहीं ना कहीं तो होगा। तो ऐसा अप्रोच नहीं रख के मेरा मेरा यही मानना है कि क्यों ना हम आपको भी बता दें कि कैसा प्रोसेस फॉलो होता है कंपनी में, कैसे इंटरव्यूज राउंड्स होते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट कुछ तो हेल्प मिले। जहाँ पे कुछ ना सही तो कुछ तो बेटर होगा राइट, कुछ तो है। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये वाला लेके चलो एटीट्यूड। तो या सो वीडियो को यही एंड करते हैं। एंड सौरभ भाई थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने यहाँ पे टाइम दिया, यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम,
वीडियो के कोलैबोरेशन के लिए मान गए फाइनली, एंड वी हैव डन आवर वीडियो सक्सेसफुली. So yeah, thank you so much. No problem, Deepak. Thank you so much for inviting me here again. Okay then, Saurabh bhai, take care. Bye bye. You too.